चलो ठीक है फिर बाय, मैं जा रहा हूँ अब। कल भी आना। कल भी? कल तो मैं ऊपर जा रहा पहाड़। क्यों? कीड़ा है मेरे अंदर एक। कीड़ा है तो डॉक्टर के पास जाओ ना। डॉक्टर के पास नहीं, वो पहाड़ में जाके ठीक होता है। हाँ? वो ऊपर जाके ठीक होगा पहाड़ पे। ऊपर ऊपर से तो बर्फ आ रही है, देखो। ऐसे बर्फ खाई आपने भी ऐसे? नमस्कार, अभी हम हैं खरसाली गांव। हम यहाँ पे आए थे विद्यापीठ एक्सपीडिशन। तो आज हमारे यहाँ पे तीसरा दिन है। लगातार वेदर जो है लगातार ख़राब होता ही जा रहा है। आज यहाँ पर खरसाली गांव है जो कि 2300-2400 मीटर की ऊंचाई पे है। यहाँ पे भी काफ़ी हद तक स्नोफॉल हो चुकी है अप्रैल के महीने में। घोर कलयुग इसी को कहते हैं। दिसंबर के महीने में बुरांस खिल गए थे, अप्रैल में स्नोफॉल पे स्नोफॉल हो रहा है। उम्मीद में आए थे कि विद्यापीठ जाएंगे, सबमिट करेंगे, लेकिन अब वेदर ने जो है थोड़ा व्यवधान इसमें लाया है। बाकी कल डिसाइड होगा। अगर कल सुबह जो है मौसम खुलता है तो कल हम शिफ्ट करेंगे फॉरेस्ट कैंप के लिए। और स्नो अगर यहीं पे इतना हो चुका है तो ऊपर भी 3-4 फीट तक स्नो हो चुका होगा। तो हमें देखना होगा कि कल हम कहाँ तक जा पाते हैं, म्यूल सब आगे कहाँ तक जा पाते हैं, ये सब चीज़ें डिपेंड करेंगी। Good morning from Yamuna Valley. So finally, after 3 days of heavy rainfall and snowfall, finally the weather is clear. Sun is shining after so long. These peaks are not any of 6,000 meter peaks. They are just 4,500 meters peak when we are in April. Today we have decided to send our advance team to forest camp so that they can judge the situation over there. How much snow is there? Is route accessible for mules or not? And according to their information and update, we'll move with mules tomorrow. All right, so my name is Michael. I'm from Canada. I'm Anne-Marie from Canada too. We've been traveling for 4 months in India, but now it's our second week in the Himalayas. In the Indian Himalayas. Yeah, we were in Nepal before. But last week we did Arkidun and Sankri, so now we're here in Jankishati to do Vidya Peak. With Parvat Exploration. We're quite excited to be again in the mountain for a week, disconnected and more grounded in nature. Yeah, and there's a lot of snow. There's going to be a lot of snow on the peak, so we're quite excited for that. Yeah, and we were asked if there was something that maybe if we were able to change, what we could change. Something we did notice, and it was the same thing in the mountains in Nepal, and we noticed it a bit here as well. Obviously, there's some garbage laying around, and obviously it'd be nice to be able to pick it up, and so that when you're in the mountain, you know it's a clean environment. Yeah, so maybe having a bag, everyone picking it up a bit, and also. We noticed that, well, we were told that it was impossible to have a satellite phone here in India. So when you're trekking or in the mountains, it's it's much safer to have a satellite phone. So that's what we would change. Yeah. Also in the village, we noticed like the villages here seem a lot more traditional, maybe because there's less tourism, but the Yeah. traditional clothing is beautiful. So that's very cool to see. My name is Sylvie, and My name is Remy. we're husband and wife. We're from Canada, and it's been like maybe 1 week and a half we're here in India. We're joining our friend couple at their honeymoon for like 1 year, and we are following their adventure here in the mountains. I think like the mountains are really, really big. We don't have that in Montreal, and You have a feeling of the immensity. and we like to be dependent of the nature, so we don't have any expectation. We just like follow what the nature will bring us. That's the magic happen. Jai
हाँ जी, दिखाओ जरा, दिखाओ क्या क्या, क्या हाल चाल है उधर, बर्फ पड़ रही है? अच्छा दिखाओ दिखाओ। अच्छा बर्फ मतलब काफी ज्यादा है। अच्छा हेलो नमस्ते, मैं पविंदर सिंह रावत फ्रॉम उत्तराखंड। मैं एक टूर गाइड हूँ इस वैली का, और मैंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंट ट्रेनिंग से कोर्स किया है, बेसिक एंड एडवांस। और कोर्स टाइम पे मैंने एक्सपेडिशन भी किया था, DKD 2 मैंने सबमिट किया है। हाँ राधे। हेलो भाइयों, मेरा नाम देशराज राणा है और मैं ओसला का रहने वाला हूँ। और मैं भी इन वैलियों में काफ़ी टाइम से घुमा हूँ, और जिस पर्पज़ से घूमते थे हम, वो पर्पज़ था हमारा मानसून में जड़ी बूटी ढूंढना और कुछ पत्थर ढूंढने। तो हम उसी को एक्सप्लोर करने के लिए जाते थे, और फिर ऐसे दिलचस्प नज़ारे दिखते थे तो मन करता था कि वहाँ भी चले जाएं। तो जहाँ जहाँ मन करता था उधर चले जाते थे। नहीं पहनना है स्वरूप पर बढ़िया से सील मार। मैं तो सोच रहा हूँ अभी पहन के चल दूँ। वो साहब अभी तो रात लेते पैकिंग में, आज का काम नहीं है, चल जाए। इधर यहाँ देखो ना, यहाँ पर। गुड मॉर्निंग एंड जय शंकर एवरीवन। सो इट्स 7 o'clock इन द मॉर्निंग, और फाइनली 2 दिन के बाद अब हम निकल रहे हैं अपने ट्रैक के लिए, विद्यापीठ एक्सपीडिशन के लिए। 2 दिन से बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुई है यार, कॉन्टीन्यूसली स्नोफॉल हुई है। तो देखते हैं यमुना माँ अपनी वैली में हमें कहाँ तक जाने की अनुमति देते हैं, या हम कहाँ तक जा पाते हैं। बाकी जो भी होगा देखते हैं, क्योंकि आप कभी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, राइट। कल हमारी एडवांस टीम वहाँ पे चली गई थी, तो उन्होंने वो किस्से में बताया है कि हमारी फर्स्ट कैंप साइट पे ही अराउंड 1 और 2 फीट तक बर्फ़ गिर चुकी है। तो अभी देखते हैं, निकलते हैं हम। फाइनली आफ्टर 3 days वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फॉरेस्ट कैंप। बाकी देखते हैं, कुछ फिक्स नहीं है कहाँ तक, जहाँ तक खच्चर जा पाएगी वहाँ पे हमारा बेस कैंप लग जाएगा। उसके आगे हम डिपेंड करेगा स्नो सिचुएशन पे, वेदर कंडीशन पे, कि हम कहाँ तक पहुँचते हैं। बाकी सब माँ यमुना के भरोसे, बाकी जो भी होगा आपको आगे दिखाते रहेंगे। जय श्री यमुना। तो फाइनली सफ़र की शुरुआत हो रही है बुरांश के फूलों के साथ। ये देखो आप मेरे पीछे, बुरांश के फूल खिले हुए हैं। वैसे तो सीज़न ख़त्म हो गया बुरांश का, तो वो ख़त्म ही हो रहे हैं, बट बस जस्ट यहीं से हमारी ट्रेल स्टार्ट होती है। यहाँ पे रोड ख़त्म हो रहा है, और इस साइड पीछे खरसाली गाँव है। तो अभी हम ऊपर को चढ़ना शुरू कर रहे हैं। टीम आगे मूव कर रही है, और मैं एज़ यूजुअल वीडियोग्राफर की तरह पीछे पीछे रिकॉर्ड करते हुए चला हुआ। तो जो ये आप मेरे पीछे स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसे उत्तराखंड में छाननी बोलते हैं, छाननी। तो बेसिकली ये गांव वालों का फार्म हाउस है। तो समर्स में बेसिकली वो लोग अपने एनिमल्स को लेके, जैसे गाय, बकरी, घोड़े, वो सब लेके यहाँ पे आ जाते हैं। गांव नीचे है, यहाँ पे रहता है एक बंदा, और यहाँ जंगल में फिर वो चरने जाते हैं। तो इस पर्पस के लिए ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है, और इसमें वो लोग सो भी जाते हैं रात को। तो जैसे किसी लड़के की घर वालों के साथ लड़ाई हो जाती है ना, तो वो बोलता है तुम देखो अपना, मैं जा रहा हूँ छन्नी में सोने। और क्या मस्त ट्रेल है यार, बुरांश के बीच में से होते हुए जा रहे हैं। आनंद ही आनंद है। और हमारे साथ एक घोड़ा भी चला हुआ है। बेसिकली वो डॉग है, उसकी लात में लगी हुई है, तो वो 2.5 कदम चल रहा है। तो चेस में 2.5 कदम घोड़ा चलता है, तो इसलिए हमने उसका नाम घोड़ा रख दिया। देखते हैं कहाँ तक जाता है हमारे साथ। तो फाइनली 5 से 6 किलोमीटर की हाइक करने के बाद हम पहुँच गए अपनी
फर्स्ट कैंप साइट पे जो हमारी एडवांस टीम थी वो कल यहाँ पे आ गई थी और उन्होंने आके यहाँ पे कैंप फिक्स कर दिया था। हम म्यूल्स के साथ सारा किचन का सामान लेके और अपने टेंट्स लेके अब आए हैं। तो अभी अपने गाइड से और जो हमारे गेस्ट आ रखे हैं कनाडा से उनसे पूछते हैं कि उनका पिछली रात का एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे। हाँ जी भाई जी, सर कौन कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आप कल आ गए थे। थोड़ा सा ठंडा रहा रात को, और क्या रहा। ठंडा रहा। रात को स्नोफॉल हुई? स्नोफॉल रात को नहीं हुई, पर रात से पहले हो गई थी। ओके, रात को मौसम खुला हुआ था, स्टार्स दिख रहे थे, बहुत बढ़िया। तो अभी क्या तैयारी है? बस रवाना होंगे आगे कैंप साइट के लिए। हेलो गाइस, तो अभी हम हैं खरसाली में और अभी हम चढ़ रहे हैं विद्यापीठ एक्सपीडिशन के लिए। तो मैंने सोचा कि अपने इस एक्सपीडिशन की थोड़ी सी इंट्रो देने की जो जगह है, इससे बढ़िया तो क्या ही होगी। मैं लिटरली ट्री के अंदर हूँ यार, पूरा खड़ा हूँ मैं और मेरी हाइट 6 फीट के अराउंड है और मतलब थोड़ा ब्रॉड भी हूँ और पूरा इसके अंदर हूँ। तो आप देख सकते हो कि लाइटनिंग की वजह से पूरा ट्री होलो हो गया हुआ है। तो मस्त एक्सपीरियंस है। तो अभी बाबूदा हमें बताएंगे कि अगर हम स्नो में ट्रैकिंग करने आते हैं और हमें कैंप पिच करना है तो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें कंसीडर करके चलना चाहिए। माउंटेन पे जब भी स्नो में टेंट पिच करते हैं, सबसे पहले तो हमें देखना है कि हमको ग्राउंड को बीट अप करना है। जैसे अभी हमने यहाँ पर पहले इसको एक लेवल अप किया ताकि हम इसको एक लेवल में ला सकें। कोशिश करते हैं कि इसको जितना प्लेन कर सकें, सबसे पहला काम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फिर उसके बाद इसमें आता है सबसे ज़रूरी है, जैसे आप नॉर्मल उसमें जब ग्राउंड में कहीं पे भी लगाते हैं तो तब तो आप बिना ग्राउंड शीट के टेंट पिच करते चलेगा, लेकिन स्नो में ग्राउंड शीट का होना बहुत ज़रूरी है। वो आपकी क्या होता है, हीट को रोक के रखती है। जब आपको रात को जब आप सोओगे तो पीछे से ठंड लगती है ना, आप बहुत लोग कंप्लेन करते हैं कि अरे मेरे को ठंड लग गई नीचे से। एक्चुअली एक रीज़न उसका वही होता है कि ग्राउंड शीट आपकी नहीं लगाई होती है। राइट। तो ये दो जो चीज़ें हैं ना वो सबसे ज़्यादा, जैसे अभी आप भी देखोगे कि जो हम ये पिच कर रहे हैं 5 पोल टेंट है, ठीक है। okay. तो 5 पोल टेंट है, ये ऑल वेदर टेंट है। इसका एर्गोडायनामिक्स ऐसी है कि ये विंड हो गया, स्नोफॉल हो गया, उसको बहुत ही इजीली मतलब बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। हाँ, ये चीज़ें ना दो छोटी छोटी चीज़ें आपको वो जो माइंड में रखनी पड़ती हैं। और जैसे ये वेंटिलेशन आप देख रहे होगे, और इसे टेंट में ये वेंटिलेशन के काम आता है, ये वेंटिलेशन के काम आता है। तो कुछ लोग बंद कर देते हैं उसकी वजह से अंदर फिर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। जो आपका ब्रेथ है ना वो जमने लग जाता है, उसमें जमने लग जाता है। फिर आप कहते हैं कि अरे ये तो अंदर ही होगा, नहीं, आपका ब्रेथ जो है वो कंडेंस हो रहा है। तो इसलिए जब भी टेंट पिच करेंगे थोड़ा सा या तो उसको हल्का खोल के रखना चाहिए, और जो आप ये वाले मेन जिप है आपका उसको पहले खोल के रखना चाहिए। So, how was your experience so far? Good. We had short days. Short days. Yeah, for the moment. Not too difficult. And now you have 4 other friends. We have friends now. Yes. They're protecting us. They're very sweet. They are enjoying your company a lot, I think. I think they're enjoying the Yes. sun. And the Maggie. And the Maggie. तो अभी हमारी टेक्निकल टीम रूट ओपन करने के लिए आगे के लिए निकल रही है। क्या बोलेंगे आशुतोष भाई? जितनी कम स्नो में रूट ओपन करना पड़ेगा उतने हमारे लिए आसान होगा, उतनी कम हमारी एनर्जी लॉस होगी, उतना है हमारा मोटिवेशन रहेगा। तो अभी आप लोग कहाँ तक जा रहे हैं? अभी हम कोशिश तो कर रहे हैं कि जहाँ पे हम सोच रहे हैं कि बेस लगाया जाए, जहाँ पे पानी का स्रोत है वहाँ तक, बाकी तो सारा बर्फ के ऊपर है, ऊपर देखते हैं कहाँ तक हम पहुँचते हैं। आज का प्लान है कि आज हम बन चुके हैं कच्चर के सब। अभी लोडिंग प्रोसेस चालू है एंड इसके बाद बांधेंगे हम। और हमारा आधा ग्रुप मूव कर चुका है ऊपर के लिए। जहाँ हमारा बेस कैंप लगना था वहाँ अब हमारा एडवांस बेस कैंप लग रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, कोशिश करते हैं आज जहाँ तक हो सकेगा वहाँ तक पहुँचा जाएगा। आज बादल भी आ ही रहे हैं तो 1-2 बजे तक मौसम बरसना भी चालू हो सकता है। देखते हैं, बाकी माँ यमुना की कृपा पहले ही बताया था।
तो भाई जी कैसा लग रहा है अब तक? अभी तक तो है, अभी तो ये तो आधी लड़ाई है, अभी तो आधी लड़ाई बहुत दूर है, वो उधर जाना है अपने को, वो टॉप है अपना, वहाँ अपनी मंजिल है। और अभी हम ऑलमोस्ट किस हाइट तक आगे होंगे? अभी ये हाइट है 3800। 3800 और आज की जो हमारी कैंप साइट होने वाली है वो होने वाली है अराउंड 4000 मीटर पे। कि हमें 200 मीटर और चलना है। तो आज है हमारे विद्या एक्सपीडिशन का डे 4 और अभी हम जा रहे हैं अपनी सेकंड कैंप साइट से थर्ड कैंप साइट की ओर। आज की जो हमारी कैंप साइट होने वाली है वो 4000 मीटर पे होगी। तो अभी हैं हम अराउंड 3700 मीटर के अराउंड। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अब ये पूरी रिज ऊपर को चढ़नी है हमने स्ट्रेट, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बस जो ये थोड़ी ऑफ सीज़न स्नोफॉल हुई है वो थोड़ा तंग कर रही है, क्योंकि अब अप्रैल में यूजुअली आपको इतनी स्नो देखने को नहीं मिलती, बट पूरी ट्रेल पे 2-3 फुट बर्फ़ पड़ी हुई है। तो एक्सपीडिशन की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि यहाँ पे आपको अपने टेंट, स्लीपिंग बैग, खाने का सामान सब खुद कैरी करना पड़ता है। फाइनली वी हैव रीच्ड आवर थर्ड कैंप साइट। और अगर आपको मेरे पीछे ये पीक दिखती है तो हमने कल ये क्लाइंब करनी है ऊपर जाके, फिर हमारी फोर्थ कैंप साइट वहाँ पे होगी और उसके बाद हमारी लास्ट समिट होगा। तो क्या प्लान है आशु आज का? आज समिट कैंप को शिफ्ट और आज रात को समिट। So what's the plan for today? So today we are going to summit camp. The place you dumped your luggage, from there it will be 1 hour more. 1 hour, so a bit 1 further hour. than when you went yesterday? Yesterday. So a bit further than that? Yeah. 30 to 35 minutes from there. And do we have an idea right now what time we're gonna wake up tomorrow for summit? Tomorrow Or? we'll try to start before 1:30 or 2. Okay. So Nice. Yeah, Not a big so night. Not a big night. Okay. Yes.
So we are finally reached to the summit of Mount Vidya Peak, 5,000 meter. Yuki bro and the team. I like the name, yeah. If you are in the mountains, come with Parvat. Yes, we will. On the summit of Vidya Peak, and we decided to do this trek because we wanted to initiate two of our friends to mountaineering. First timer. We thought it would be an easy introduction, but also an expedition where you have to carry all the tent, the food. So it was a really nice expedition, but it was much more beautiful and also more technical. Like it really felt like true mountaineering. And the expedition started with a snowstorm and a lot of raining, so we delay one day, maybe with 2 days, almost 2 days. But Parvat teams adjust, and we finally made it in time. So we did it. It was hard way or no way. Parvat was very accommodating. Yeah. Well, they're good to adapt to the situation and find plan B. And they want to make sure that you're happy, so the clients are happy, so we are, and everything is nice. Thank you. सो फाइनली आफ्टर 5 days हम पहुंच गए अपने बेस कैंप पे। जब हम यहाँ से गए थे पूरा वाइट हो रखा था, अब स्नो पिघलनी शुरू हो गई है। आज हम यहीं पे रेस्ट करेंगे और फिर कल हम उतरेंगे खरसाली और फिर परसों खरसाली से देहरादून।